welcome back to class 10th mathematics video lecture 2. In the previous video we saw the basics of arithmetic progression. Let's just have a quick revision. AP is a type of number sequence where a particular number is either added or subtracted to or from each term so as to get the next term. The first member of the sequence is called the first term and is denoted by small a. The difference between the consecutive terms of the AP is called the common difference and is denoted by small d. Small n denotes the number of terms in an AP. If an AP has finite number of terms, then it is said to be a finite sequence, else it is an infinite sequence. The general form of representation of an AP is A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D and so on. The nth term of the sequence is calculated by the formula an is equals to a plus n minus 1 into d. The sum of n terms of an AP is formulated by Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. On this screen you may see the tabular representation. We know the general formula of AP is an is equals to a plus n minus 1 into d. To calculate the first term, we put the value of n as 1. So we get a1 is equals to a plus 1 minus 1 into d, which is again equivalent to a. We know our first term is equal to a. Then for the second term, we'll put the value of n as 2. So a2 is equals to a plus 2 minus 1 into d, which is equivalent to a plus d. For the third term, we'll put n equals to 3 and we'll get a plus 3 minus 1 into d, which is equivalent to a plus 2d. Again for the fourth term, we'll put the value of n as 4. So we get a4 is equals to a plus 4 minus 1 into d, which is equivalent to a plus 3d. You may see for the first term we have a. For the second term we have a plus d. For the third term we have a plus 2d. For the fourth we have a plus 3d. So in d, whatever is the number of term, one less would be multiplied with d. So for the nth term we will have a plus n minus 1 into d. Let's take up an example for better understanding. Here it is given that find the nth term of the AP 1, 2, 3, 4, 5 so on up till an if the number of terms are 15. So the number of terms in this sequence is given as 15. So n is equals to 15. The first term of the sequence, as you can clearly see, is equivalent to 1. We have to find the common difference. The common difference, how do we find the common difference? Common difference can be formulated by subtracting the first term from the second. So 2 minus 1 gives us 1. We have a is equal to 1, d is equal to 1 and n is equals to 15. Now we can simply put all the values in this formula. An equals to a plus n minus 1 into d and thus we can find the nth term. So an is equals to 1 plus, in place of n I am placing 15. So 15 minus 1 into 1. See, in place of D, I wrote 1, in place of A, I wrote 1 and in place of N, I wrote 15. So here I have 1 plus 14 gives us 15. Let's take up another example based on the sum formula. Here we are adding the natural numbers up to 15 numbers. We know the AP formed in this case would be 1, 2, 3, 4, 5 so on up till 15. We have to add all of these. Okay, so the formula we have A equal to 1, D equals to 2 minus 1 which is again equal to 1 and AN is equals to 15, that is our last term is equals to 15. Okay, so first we put the values in the formula. S is equals to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. We'll place the value of n as 15 and a as 1 and d also as 1. So we get 15 by 2 into 2 into 1 plus 15 minus 1 into 1. By this we get 15 by 2 into 2 plus 14, that is equivalent to 20. Hence, the sum of natural numbers up to 15 numbers give us 120.
Next we'll solve the NCERT question from exercise 5.1, question number 2. And the common difference D are given as follows. क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 5 पार्ट्स हैं, सभी को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म ए दी गई है और कॉमन डिफरेंस डी दिया गया है। हमें एपी की फर्स्ट वाली 4 टर्म्स फाइंड करनी है। सो फर्स्ट वाले पार्ट में ए इक्वल्स टू 10 और डी इक्वल्स टू 10 ये दिया गया है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। फर्स्ट टर्म हमें पहले से ही दी गई है, ए इक्वल्स टू में 10। सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गई हमारी a इक्वल्स टू में 10। सेकेंड टर्म की बात करते हैं जिसे लिखते हैं हम a2। सेकेंड टर्म क्या होती है, सिंपली फर्स्ट टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस। सो फर्स्ट टर्म है हमारी 10 प्लस में कॉमन डिफरेंस भी है 10, 10 प्लस 10 ये हो जाएगा 20। ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड टर्म फाइंड करेंगे जिसे हम लिखेंगे a3। a3 क्या होगा, जो प्रीवियस टर्म है, थर्ड टर्म से पहले कौन सी टर्म है a2। a2 की जो भी वैल्यू आई है इसमें d प्लस कर देंगे। a2 हमारा 20 प्लस में d की वैल्यू है यहाँ पर 10। सो प्लस कर देंगे 10, ये हो जाएगा 30। बिल्कुल इसी तरह से a4 फाइंड करेंगे। तो इससे प्रीवियस टर्म a4 फोर्थ टर्म हमें फाइंड करनी है, तो थर्ड टर्म जो भी है इसमें d यानी कि कॉमन डिफरेंस प्लस कर देंगे। सो थर्ड टर्म हमारी 30 प्लस में कॉमन डिफरेंस 10, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगी 40। ये आ गई हमारी एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स। तो यहां पर लिख देंगे एपी जो हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स आई हैं 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। हमें सिर्फ क्या करना है, स्टार्टिंग वाली 4 टर्म्स ही लिखनी है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया हमारा ये। सेकेंड पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। सेकेंड पार्ट में ए की वैल्यू दी गई है -2 और डी कॉमन डिफरेंस 0 है। सो फर्स्ट टर्म हमारी हमें क्लियरली दी गई है a इक्वल्स टू में -2। बात करते हैं सेकेंड टर्म a2 की। a2 क्या होगा, बिल्कुल सिंपल, फर्स्ट टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म है हमारी -2 प्लस करेंगे इसमें कॉमन डिफरेंस 0 तो -2 ही रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से a3 थर्ड टर्म हमारी क्या होगी, जो हमारी सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म है हमारी -2, इसमें प्लस करेंगे कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है 0। सो कॉमन डिफरेंस 0 प्लस किया तो ये भी -2 ही रहेगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू में 0 ऐड करने पर उस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। -2 में हम 0 ऐड करेंगे तो -2 ही रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे a4। तो फोर्थ टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म में हम प्लस कर देंगे कॉमन डिफरेंस 0। सो इक्वल्स टू में यहाँ पर भी आ जाएगा -2। तो हमारी AP क्या हो जाएगी, हमारी AP हो जाएगी गाइज -2, -2। कॉमन डिफरेंस अगर 0 है तो हमारी जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगी। ये हो गई हमारी सेकेंड पार्ट में जो कंडीशन दी गई है उसके लिए एपी। अब थर्ड पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड पार्ट, इसमें a इक्वल्स टू 4 और d इक्वल्स टू -3 दिया गया है। सो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट होता है यहाँ से। फर्स्ट टर्म हमें दी गई है a इक्वल्स टू में 4। सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे a2। सो सेकेंड टर्म क्या होगी, सिंपली फर्स्ट टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस। सो फर्स्ट टर्म है हमारा 4 प्लस में कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है -3, तो प्लस में -3 इक्वल्स टू में क्या आएगा। अब बिल्कुल सिंपल देखो गाइस, प्लस माइनस -3 कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। बिल्कुल सिंपल है, 4 आ गया, इसके बाद यहाँ पर है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस और 3 आ जाएगा एज इट इज। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है, ये 1 आ गया। अब बात करते हैं इसकी थर्ड टर्म a3 की। सो इक्वल्स टू में थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म है हमारी गाइज 1 प्लस में कॉमन डिफरेंस है -3। सो यहाँ पर आ जाएगा -3। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम सिचुएशन होगी, प्लस माइनस हो जाएगा। 1 -3 इक्वल्स टू में होगा -2। छोटी टर्म में से बड़ी टर्म को माइनस करेंगे तो माइनस में, और इन दोनों का डिफरेंस होता है 2। सो इसको सोल्व करने पर हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी -2। इसके बाद फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे a4 क्या होगा हमारा, सिंपली थर्ड टर्म जो है हमारी -2, इसमें प्लस करेंगे कॉमन डिफरेंस जो है -3। इनको सोल्व करने पर कितना आएगा, प्लस माइनस 3 माइनस का 2 माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो माइनस में ही रहेगा, और दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे 2 + 3 ये हो जाएगा
5। सिंपली -2 -3 ये हो जाएगा -5। सो ये आ गई हमारी स्टार्टिंग 4 टर्म। सो हमारी एपी क्या होगी, एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगी, सिंपली 4, इसके बाद 1, इसके बाद -2, इसके बाद -5। ये हो जाएंगी हमारी एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स। फोर्थ पार्ट, इसमें a इक्वल्स टू -1 और d इक्वल्स टू 1/2 कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन में है। सो सिंपली फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू -1 हमें दी गई है। बात करते हैं a2 यानी कि सेकेंड टर्म की। सेकेंड टर्म क्या होगी, सिंपली जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। सो फर्स्ट टर्म है हमारी -1, इसमें गाइज हम ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस 1/2। इसको सोल्व करना है, सिंपली साइड में सोल्व कर लेते हैं। -1 प्लस में 1/2 है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 है, 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर है -1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो अपनी तरफ से हम 1 लगा सकते हैं। 1 के टेबल में 2 कब आएगा, 2 टाइम्स पर, यानी ऊपर हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2, इसके बाद +1 एज इट इज। 1 के नीचे यहाँ पर 2 है, 2 के टेबल में 2 आता है 1 पर, यानी इस वाली ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही रहेगा। अब सिंपली इसे सोल्व कर लो। प्लस वाली वैल्यू है हमारी 1, इसे अच्छी तरह से लिख लेते हैं। प्लस वाली वैल्यू 1 पहले लिखा, उसके बाद लिखा हमने -2 और अपॉन में आ गया 2। हमने ये प्लस वाली वैल्यू है इसको पहले लिख लिया और -2 इसके बाद लिख दिया। सो 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो सिंपल है माइनस में आएगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, छोटी टर्म में से बड़ी टर्म को माइनस करें तो माइनस में इन दोनों का डिफरेंस है गाइस 1 और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज। सो सिंपली इसको सोल्व करने पर आ गया हमारा -1/2। हमारी जो सेकेंड टर्म है वो क्या आ जाएगी, इनको सोल्व करने पर -1/2। इसके बाद बात करते हैं थर्ड टर्म a3 की। a3 क्या होगा, जो हमारी सेकेंड टर्म है हमारी -1/2, इसमें ऐड कर देंगे हम कॉमन डिफरेंस 1/2। सो प्लस लगाता हूं, कॉमन डिफरेंस 1/2 ऐड किया तो क्या आएगा, सिंपली यहां पर देखो एक प्लस वाली वैल्यू है, एक माइनस वाली वैल्यू है, दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ प्लस माइनस साइन का डिफरेंस है। इस कंडीशन में ये कैंसिल हो जाते हैं, या फिर आप इस तरह से कर सकते हो 1/2 में से 1/2 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0। इसी तरह से A4 फोर्थ टर्म पर आते हैं। फोर्थ टर्म क्या होगी हमारी, सिंपली जो हमारी थर्ड टर्म आई है, थर्ड टर्म हमारी 0 आई, इसमें प्लस कर देंगे हम कॉमन डिफरेंस 1/2। सो कॉमन डिफरेंस आ गया 1/2 इक्वल्स टू में 1/2 में 0 ऐड करेंगे तो 1/2 ही रहेगा। सो हमारी फोर्थ टर्म आ गई 1/2। अब हमारी एपी क्या बनेगी, एपी की फर्स्ट 4 टर्म क्या होंगी हमारी, -1, इसके बाद -1/2 सेकेंड टर्म आ गई, इसके बाद थर्ड टर्म हो जाएगी 0 एंड फोर्थ टर्म हो जाएगी हमारी 1/2। इसी तरह से ये सो ऑन आगे चलती रहेगी। ठीक है, ये हो गई हमारी गाइस फाइनल एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स। लास्ट वाला पार्ट, फिफ्थ पार्ट, उसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट यानी कि फिफ्थ पार्ट, इसमें a इक्वल्स टू -1.25 माइनस में दी गई है फर्स्ट टर्म, और d कॉमन डिफरेंस -0.25 ये भी माइनस में दिया गया है। सो सिंपली फर्स्ट टर्म तो हमारी एज इट इज आ जाएगी माइनस में 1.25। बात करते हैं a2 यानी कि सेकेंड टर्म की, तो सिंपली a2 क्या होगी, फर्स्ट टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस। सो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई माइनस में 1.25, इसमें प्लस कर देंगे कॉमन डिफरेंस जो है माइनस में 0.25। अब सिंपली इसे सोल्व करके यहां पर लिखेंगे। देखो गाइस सिंपल है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ही सोल्व कर लेते हैं। माइनस में 1.25, यहां पर जो साइन है प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 0.25, ब्रैकेट ओपन होने पर ये आ जाएगा माइनस में 0.25। अब ऐड कर देंगे, ऐड करना बिल्कुल सिंपल है। 1.25 इसके नीचे लिखेंगे 25, 0.25 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा गाइस 150. अब ये दोनों साइन, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस का साइन रहेगा और दोनों को ऐड करने पर आया गाइस 1.50। ये आ गई हमारी गाइस सेकेंड टर्म। बात करते हैं A3 यानी कि थर्ड टर्म की। सो ये भी बिल्कुल सिंपल होगी, सेकेंड टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म है हमारी माइनस में 1.50, इसमें प्लस करेंगे गाइज हम कॉमन डिफरेंस माइनस में 0.25। इसको सोल्व करेंगे,
बिल्कुल सिंपल है, प्लस माइनस ये हो जाएगा गाइस ब्रैकेट ओपन होने पर माइनस में लिख लेते हैं यहाँ पर, माइनस में 1.50 प्लस में, सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 0.25। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो साइन आएगा माइनस का, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 1.50 में 0.25 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.75। ये हो गई हमारी थर्ड टर्म। आते हैं गाइज फोर्थ टर्म पर, A4 क्या होगी हमारी, बिल्कुल सिंपल, जो हमारी थर्ड टर्म आई है इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। सो थर्ड टर्म है हमारी माइनस में 1.75, इसमें प्लस कर देंगे हम कॉमन डिफरेंस जो है गाइज माइनस में 0.25। सोल्व कर लेंगे इसे। सो सिंपली यहाँ पर आएगा गाइज माइनस में 1.75 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस का साइन रहेगा, और इसमें यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 0.25। अब सिंपली ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो साइन माइनस का ही रहेगा। 1.75 में 0.25 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.00। सो हमारी AP क्या होगी, ये हमारी फोर्थ टर्म आ गई 2.00। अब सिंपली हमारी AP क्या होगी, AP हो जाएगी हमारी, AP की स्टार्टिंग वाली फोर्थ टर्म क्या होंगी, 1.25 माइनस में 1.25 माइनस में 1.50, इसके बाद इससे आगे वाली टर्म होगी माइनस में 1.75, और इसके बाद फोर्थ टर्म हो जाएगी हमारी माइनस में 2.00 एंड सो ऑन। ये हो गई हमारी AP की फर्स्ट 4 टर्म्स पार्ट 5th के लिए। इसी पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा। Now I hope all the concepts are clear. We'll take up more in our upcoming lectures. That's all. Thank you and have a nice day.